السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز سامعین، آپ کا خیر مقدم ہے یونانی ویڈیو لیکچر سیریز میں۔ آج 2 جلدی امراض کے بارے میں آپ سے ہم گفتگو کریں گے۔ پہلے کا نام سورائسس اور دوسرے کا نام ایگزیما۔ سورائسس کو طبی اصطلاح میں داؤ صدف کے نام سے جانتے ہیں اور ایگزیما کو نار فارسی کے نام سے جانتے ہیں۔ اس میں چند طبی اصطلاحات ہیں، اگر ان کو اچھی طرح سے ہم سمجھ لیں تو ہمیں سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ یہ دیکھیے، آپ کو ایگزیما بائیں جانب میں ایگزیما کی علامت دکھائی گئی ہے اور دائیں جانب میں سوریاسس کی علامت دکھائی گئی ہے۔ اب اس کی آئیے ہم پیتھوجینیسس سمجھتے ہیں کہ کیا ہے۔ ہم نے جیسا کہ آپ کو کہا، کچھ چند الفاظ ہیں جن کو ہم ذہن نشین کر لیں تو انشاءاللہ اس پورے مضمون کو مکمل طریقے سے سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ پہلا لفظ ہے صدف۔ صدف کے لغوی معنی سی پی کے ہوتے ہیں۔ اب آپ کے علاقے میں سی پی کو کیا بولتے ہیں ہم تو یہ نہیں جانتے، لیکن چونکہ آپ نے اتنا ہم مان کے چل رہے ہیں کہ انٹرمیڈیٹ تک بایولوجی پڑھی ہوگی، تو جو مولسکا نان کارڈیٹ میں مولسکا کنگڈم ہوتا ہے، اس کے اندر سی پی جو بہت ہی سخت کھول ہوتی ہے، اس کی جو کورنگ ہے بہت سخت ہوتی ہے، تو یہ اسکل چونکہ جلد کے اوپر سخت اسکل بن جاتی ہے، صدفی چھلکے بن جاتے ہیں، اسی لیے اس مرض کا نام داؤ صدف رکھا گیا۔ اور دوسرا ہے نار فارسی۔ نار سے مراد آگ سے ہے۔ قرآن پاک میں آیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا نار کنتم سلام علی ابراہیم۔ اے آگ، جب ابراہیم علیہ نبینا صلاۃ والسلام کو آگ میں آتش نمرود کے حوالے کیا گیا تو اللہ رب العزت نے براہ راست حکم دیا، فرشتے آئے اور بہت لوگ آئے کہ ہم اس آگ کو بجھا دیں، لیکن نہیں، آپ نے کہا کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور وہ میرے لیے کافی ہے۔ تو براہ راست اللہ رب العزت نے آگ کو حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جائے، اور ایسا ٹھنڈی نہ ہو کہ جو ہے ہمارے خلیفہ کو ٹھنڈک لگنے لگے، سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جائے۔ بعض وقت ٹھنڈک بھی ہم کو دشواری کا باعث بن جاتی ہے، تو سلامتی کے ساتھ ٹھہر جائے تو وہ وہاں پر نار لفظ آیا ہے، اور نار کے معنی آگ کے ہوتا ہے، یعنی آگ جیسے جلن ہوتی ہے۔ نار فارسی یا ایگزیما میں جلن ہوتی ہے جلد کے اندر، اسی لیے اس کا وجہ تسمیہ آگ کے معنی جلن ہوتی ہے، اس لیے اس کا نام نار فارسی رکھا گیا۔ یہ فارسی جو ہے زبان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ عربی، فارسی، اردو، یہ جو زبانیں ہیں، زبانوں سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ سب سے پہلے فارس کے اطباء نے اس مرض کی ماہیت کو سمجھا اور پھر اس کے بعد اس پر روشنی ڈالی، اور دھیرے دھیرے عرب میں بھی یہی لفظ رائج ہو گیا، اور آج اسی کے نام سے یونانی طبی اصطلاح میں جانا جاتا ہے۔ یعنی آگ کے مانند جلتا ہوا درد اس میں ہوگا، اسے نار فارسی۔ اور صدف مانے ہم نے سی پی بتایا، تو سی پی کی طرح اس کی جیسے اس کی کورنگ جو ہوتی ہے وہ بہت سخت ہوتی ہے، اسی طرح سفید جو ہے صدفی چھلکے پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ 2 لفظ آپ نے دیکھا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ داؤ صدف میں یونانی تصور کیا ہے۔ سودا اور دم خلیص کا غلبہ ہوگا۔ آپ نے بارہا پڑھا ہے کہ سودا کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ سودا کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ سودا کا مزاج ہاٹ اینڈ ڈرائی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ہاٹ اینڈ ڈرائی، کولڈ اینڈ ڈرائی۔ سودا از کولڈ اینڈ ڈرائی۔ گستاخی معاف ہو،
अगर आप लोगों ने गलत सुन लिया है, ये सौदा की कैफियत कोल्ड एंड ड्राई होती है, तो इसमें खुश्की आ जाती है, यबूसत आ जाती है, और फिर उसके बाद जिल्द में इसका एहतकान होता है। एहतकान से मुराद कॉन्जेशन, इस्तेमा, मवाद का एकुमुलेशन ऑफ मार्बिड सिमर्स, जो खलीज अखलाक हैं, चाहे वो सौदा हो या दम हो, जिल्द में उसका इस्तेमा हो जाएगा, और जब इस्तेमा हो जाएगा तो जिल्द की कैफियत खुश्क हो जाएगी, रूखापन हो जाएगा, और तशक्कुक, शक्कल कमर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंगुलियों के इशारे से चाँद शक्कल कमर 2 हिस्सों में हो गया। तो शक माने जिल्द फट जाती है, फटती हुई जो है महसूस होती है, तो यहाँ से नाम आया तशक्कुक। मेरे अजीज़, हो सकता है कि आपका दिमाग थोड़ा बोझ महसूस कर रहे हो, लेकिन कोई दबाव महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। दाऊ सदफ में पहला लफ्ज़ हमने बताया, सदफ के माने सीपी, जो सख्त होती है और समंदर में जो पाई जाती है, समंदर के किनारे पर, और इवन जो है नदियों के भी किनारे होते हैं, बच्चे जो उससे खेलते हैं तो उसकी जो है खोल बहुत सख्त होती है। जिल्द सख्त, छिलके, स्केलिंग जो है पाई जाती है, इसीलिए इसको दाऊ सदफ कहा गया। फिर उसके बाद कहा गया कि सौदा या दम गलीज का गलबा होगा। अब चूँकि सौदा की अलामत कोल्ड एंड ड्राई होती है और दम की अलामत हॉट एंड मॉइस्ट होती है, तो दोनों का जब एहतकान हो जाएगा, जमूदगी हो जाएगी, पूरा भर जाएगा, तो उसको हम कहते हैं एहतकान हो गया। तो इससे जिल्द में खुश्की होगी और जिल्द फटेगी और सदफी छिलके दिखाई पड़ेंगे। तो ये यूनानी तस्वुर है आपको दाऊद सदफ का। अब यहीं पर अगर जदीद नुक्ते नज़र की बात करें तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, यानी विरासती तौर पर ये पाया जा रहा है, और उसमें इम्यून ट्रिगर, चाहे ज़हनी दबाव हो या किसी तरीक़े का इल्तहाबी दबाव हो। नीचे ब्रैकेट में लिखा गया है स्ट्रेस ऑब्लिक इन्फेक्शन। एक बार फिर हमें पॉइंटर लेने दीजिए, तो थोड़ा सा हम जो है उस पर जब आपको रखेंगे तो समझ में आएगा। ये देखिए लिखा हुआ स्ट्रेस ऑब्लिक इन्फेक्शन, लाल पेन लेने दीजिए। ये लिखा हुआ है स्ट्रेस ऑब्लिक इन्फेक्शन। तो पहला जो है ये विरासती, और जब किसी भी तरीक़े से ट्रिगर मिलेगा उसको, यानी जहनी दबाव होगा या तादियाती दबाव होगा, तो उसकी टी सेल एक्टिवेट हो जाती है, ओवर एक्टिवेट हो जाती है, और साइटोकाइनिन ऐसे जैसे कि स्टार्म आ गया हो, बॉन्डर आ गया हो, बहुत वाफिर मिक़दार में साइटोकाइनिन का अखराज होता है, और TNF अल्फ़ा और IL-17 का अखराज होता है। TNF ट्यूमर नेक्रोडाइजिंग फैक्टर, ट्यूमर नेक्रोडाइजिंग या नेक्रोज फैक्टर, यानी ये ट्यूमर की खलियात को मारने के काम आता है। लेकिन जब आप जदीद में घुस रहे हैं तो थोड़ा सा और इसको घुसिए। TNF का डबल रोल है, ड्यूअल रोल है, ये डबल एज स्वॉर्ड है, यानी दुधारी तलवार है। क्यों दुधारी तलवार है? कि एक तरफ ये ट्यूमर सेल की खलियात को मार डालता है, अच्छी बात है, लेकिन जब इसका कंसंट्रेशन हाईली लोकलाइज्ड होता है, मकामी तौर पर होता है, लेकिन जब इसका कंसंट्रेशन पूरा ओवर द बॉडी हो जाता है तो उसका कंसंट्रेशन लूज कर जाता है, और उसमें जो है आपको मुज़मिन क्रोनिक इन्फ्लेमेशन दिखने को मिलता है। जैसे आपने
ये सदफ या सोरोसिस पढ़ रहे हैं, उससे बाउल सिंड्रोम जो आपको सुना नाम होगा, तो ये सब TNF है। तो TNF ट्यूमर नेक्रोस फैक्टर अल्फा या सिंपली इसको TNF भी कहते हैं। ये दोधारी तलवार है, एक तरफ तो ये ट्यूमर खलियात को मारने का काम करता है जो कि अच्छी चीज़ है। हम जानते हैं कि खलियात की उमूमी लाइफ साइकिल 25 से 30 दिन की होती है, लेकिन ये 3-4 दिन के अंदर ही इनको मार देगा और डेड खलियात ऊपर आती जाएंगी, एक दूसरे के ऊपर बढ़ती चली जाएंगी, बैठती चली जाएंगी, एक गद्दा फिर दूसरा गद्दा फिर तीसरा फिर चौथा फिर पांचवा फिर मोटा गद्दा जाए। तो उसी तरीके से ये जो सदफी छिलके बनते हैं वो डेड सेल्स की वजह से होते हैं, आकर के जमा होती चली जाती हैं, इसलिए वो मोटा हो जाती है। और केराटिनोसाइट्स, जैसे आपके बाल में जो प्रोटीन होता है उसका नाम केराटिन है, उसी तरह जिल्द में भी जो ये स्केल एक्स्ट्रा बन रहे हैं उसमें भी केराटिनोसाइट पाए जाएंगे। और हाइपर फ्लोरीफिरेशन बहुत तेज़ी से अफजाइश होगी, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, और तमाम वो खलियात आकर के जिल्द के ऊपरी सतह पर जमा होती चली जाएगी। इसलिए मोती की तरह से सफ़ेद चमकता हुआ जिल्द दिखाई पड़ती है, और इस मोती की तरह सफ़ेद चमकता हुआ और मोती की तरह ये उसके जो है क्या कहते हैं सीप की तरह मोटा जो हो जाता है, इसी को हम सोराइसिस या दाऊद सदफ कहते हैं। और इसका कुल नतीजा क्या होता है, थिक प्लेक्स, जैसे आपको शराइन और वरीद में आपने प्लेक्स पढ़ा है, उसी तरीके से यहाँ पर प्लेक से मुराद बस ये है कि सिल्वरी स्केल्स, ऊपर जो है जिल्द आपकी मोटी होती चली जाएगी, परत दर परत बैठती चली जाएगी। तो ये आपका मॉडर्न है। और आपको यूनानी में बताए कि सौदा या दम का गलबा होगा, अदम तवाज़ुन होगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, और ये जिल्द में एहतकान एक्युमुलेशन होगा। अब यह एहतकान को भी समझना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी वाफिर मिक़दार में कोई भी अज्जा मादा बने और उसी वाफिर मिक़दार में अखराज भी होता चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं, जितना इनपुट उतना आउटपुट, बैलेंस ज़ीरो, कहीं दिक्कत नहीं। लेकिन जब बनता ज़्यादा है और अखराज नहीं हो पाता है तो वहाँ पर वो जमा हो जाता है। इसको हम एहतकान या कॉन्जेशन के नाम से कहते हैं। जैसे आपने वेनस कॉन्जेशन का नाम सुना होगा, वेनस में ही जो है ब्लड वहीं का वहीं जमा हो जाएगा, आगे जो है आपको राइट एट्रियम और फिर उसके बाद राइट वेंट्रिकल और फिर उसके बाद पल्मोनी से होते हुए लंग्स की तरफ नहीं जाएगा। सब जो है ब्लड जो जिस्म के से लौट करके फेफड़े में जाना चाहिए था वो नहीं जाएगा, जगह जगह जो है नाली जाम हो जाएगी, शराइन और वरीदे जाम हो जाएगी, वहाँ ब्लड एक्युमुलेट हो जाएगा। तो उसको हम वेनस कॉन्जेशन के नाम से जानते हैं। हालांकि वेनस कॉन्जेशन का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप मेडिकोज हैं, जो लफ्ज़ आ जाए उसका खुलासा करना नहायत ज़रूरी हो जाता है ताकि जो है आपको दिमाग में कोई दिक्कत और दुश्वारी ना हो। तो सौदा या दम का गलबा होगा, और ये दम साले दम नहीं है बल्कि गलीज़ है, गंदा है, खून इम्प्योर है। और सौदा, ये दोनों का अदम तवाजुन हुआ, जिल्द में एहतकान हुआ, एक्युमुलेशन ऑफ मार्बेट ह्यूमर्स, जिल्द में खुश्की बढ़ी क्योंकि आपको यबूसत बुनियादी कैफियत है सौदा की, तो खुश्की आनी ही आनी है, और जब खुश्की आती है तो जिल्द भी फटती है। तशक्कुक, सक्कल कमर, चाँद जो है 2 हिस्सों में बिखर गया जो है, उसी तरह से जिल्द जो है क्रैक जो है पड़ जाती है, जैसे जाड़े में हमारी एड़ियाँ पटी हुई दिखाई पड़ती हैं, आपने इसको महसूस किया होगा। और सदफी छिलके मोटी मोटी जो है वहाँ पर मोती की तरह चमकता हुआ सफ़ेद जो है जिल्द दिखाई पड़ेगी।
आइए नारे फारसी की तरफ हम चलते हैं। अब इसके बरअक्स पहले यूनानी देखिए, इसमें सफरा और दम का गलबा है। अब जरा मुआजना कीजिए पहले से, वहाँ भी दम था, दम गलीज लिखा गया है, यहाँ दम गलीज नहीं लिखा गया है, लेकिन है हकीकत में दम गलीज ही। यहाँ भी आपका क्या है, दम गलीज ही है। तो अब जो है क्या कहते हैं, ये दम गलीज ही है। ये दोनों तो कॉमन हो गया, लेकिन अलग क्या हो गया, अलहदा क्या हो गया, यहाँ सौदा था और यहाँ पर सफरा हो गया। सौदा की कैफियत कोल्ड एंड ड्राई और सौदा की कैफियत कोल्ड एंड ड्राई। यबूसत होगी लेकिन थोड़ी सी ठंडक भी होगी, लेकिन सफरा हार्ट एंड ड्राई, हार और खुश्की। इसीलिए एक्जिमा में आपको बहुत ज़्यादा जलन होती है और इसी वजह की से इसका नाम नार। और फारस के लोगों ने शुरुआत में सबसे पहले इस मर्ज की तरफ उनका तवज्जो किया और अपने जो है तिब में शामिल किया, तो नारे फारसी हो गया। अब ये अब जिल्द में हिद्दत, ये जिल्द में हिद्दत, हिद्दत क्या होती है। अब कोई चीज़ आपको, जैसे खून है, खून में जोश आ जाए, गर्मी आ जाए, तो जो गर्मी आ जाती है और बहुत तेजी से, एक लफ्ज़ इसको है जो है उसको कहते हैं हैजान, खून में हैजान पैदा हो जाता है, उसकी गर्दिश में तेजी आ जाती है। और आपने जो है ये महसूस किया होगा कि जब हम तेज दौड़ते हैं, तेज चलते हैं, तो जिस्म गर्म हो जाता है और पसीने का इखराज होता है। तो उसी तरह से खून की गर्दिश या हैजान के बाइस हिद्दत पैदा हो जाती है, गर्मी पैदा हो जाती है, और उस गर्मी की वजह से जिल्द में खारिश महसूस होती है और साथ ही रतूबत का भी अखराज होता है। अब यहाँ देखिए, दाऊद सदफ में कहीं रतूबत नहीं थी, सिर्फ खुश्की खुश्की थी, और यहाँ पर आपको सफरा है लेकिन उसके साथ साथ रतूबत का भी अखराज हो रहा है। तो अब यहाँ पर इसको सुखाने वाले वसूल और अदविया इस्तेमाल किया जाएगा, और नासूर नुमा कैफियत यानी बार बार जो है मुज़मिन हो जाएगा, जल्दी से अच्छा नहीं होगा। तो ये आपको नारे फारसी की चंद कैफियत और जितनी अपनी जो है सलाहियत है उसकी बिना पर आपको सामने रखने की कोशिश की है। अब ये जदीद तिब्बी इस्तिलाह में देखिए तो कहते हैं स्किन बैरियर डिफेक्ट। इसके पहले स्लाइड्स में हमने बताया था कि हमारे जो जिल्द है उस पर लातादाद जरासीम होते हैं, लेकिन वो नॉन पैथोजेनिक होते हैं, किसी मर्ज का बाइस नहीं बनते, बल्कि सिम्बियाटिक रिलेशनशिप होती है। वो जिल्द की हिफाजत करते हैं और जिल्द से ग़िज़ा हासिल करते हैं। तो जरासीम का भी काम चलता है और जिल्द का भी काम चलता है, और सिम्बियाटिक रिलेशन है, कोई नुकसान नहीं, कोई पैथोजन नहीं। लेकिन एज सुन एज देयर इज अ डिफेक्ट इन द स्किन बैरियर, जब इसमें ब्रीच होता है प्रोटेक्टिव लेयर में, चाहे असबाब जो भी हो, तो एलर्जन पेनिट्रेशन, वहाँ से एलर्जिक मटेरियल, एलर्जेंट जिसका कहा गया है, वो पेनिट्रेट करते हैं, दाखिल हो जाते हैं। अब एलर्जी क्या होती है, हमारी जिल्द कुछ मखसूस के लिए, चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा हसास होती है। जैसे किसी को खुशबू से जो है दिक्कत हो जाती है, किसी को पालन ग्रेन से हो जाती है, किसी को हल्की से सर्दी से हो जाती है, किसी को धूल से हो जाती है, किसी को जो है नाइट्रोजनस गैसेस से हो जाती है। यानी मुख्तलिफ नौइयत के कीमियाई मादे से
हसासियत के बढ़ जाने को हम एलर्जी कहते हैं। तो वन और मोर एलर्जेंट may penetrate into the skin as soon as there is a breach of skin barrier or there is a defect in the skin barrier। जो तहफ़्फ़ुज़ का निज़ाम था ज्यों ही कम हुआ ये जो है एलर्जेंट अंदर चले जाएंगे। अब उसके बाद क्या होगा, IgE मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी, ये आपका एक IgE एंटीबॉडी है। और एंटीबॉडी का क्या काम होता है कि जो एंटीजन कहाँ से आता है, किसी भी जरासीम से आता है, उसको किल करने का काम करती है। अब इसमें जो है हाइपर सेंसिटिविटी, हमारी जिल्द की हसासियत गैर ज़रूरी तौर से, गैर फितरी तौर से बहुत बढ़ जाती है और इल्तिहाब देखने को मिलता है, सूजन देखने को मिलता है। इन्फ्लेमेशन भी क्या है, एक तहफ़्फ़ुज़ी रद्द अमल है। जब कोई भी बीमारी, कोई भी जरसूमा का हमला होता है तो अपने को गैर तबई वजाहत से तबई वजाहत में वापस लाने के लिए ये इल्तिहाब होता है। लेकिन ये अगर बार बार होगा, मुज़मिन कैफियत में हो जाएगा, तो फिर दिक्कत और दुश्वारी भी हो जाएगी। तो एक तरफ तो तहफ़्फ़ुज़ी है, लेकिन हद से बढ़ जाना किसी चीज़ का फिर वही मर्ज बन जाता है। तो जब ऐसा होगा तो आपको खुजली भी होगी, वूजिंग भी होगा और क्रोनिक लिचेनिफिकेशन, यानी एकदम जो है लाइकन जैसे जो है एक आपको पौधा अलगी है उस तरीके से, जैसे पानी की सतह पर फैल जाता है हरा हरा, तो उस तरीके से हरा तो नहीं होता, ये पूरे जिस्म के जिल्द पर फैल जाता है। और यूनानी में हमने बताया कि सफरा और दम का अदम तवाज़ुन होगा, दम में हैजान पैदा होगा, खून की गर्दिश बढ़ जाएगी और जो ही खून की गर्दिश बढ़ेगी रगें भी कुशादा हो जाएंगी, वैसोडायलेशन होगा, खून वाफिर मकदार में खूब तेज़ी से रवां दवा होगा, सर्कुलेट करेगा, तो हिद्दत या गर्मी बढ़ जाती है, जोश आ जाता है और जिसके नतीजे में खारिश और रतूबत का अखराज होता है और नासूरमा कैफियत बन जाती है। आइए हम आगे चलते देखते हैं। अब वही सारी चीज़ें दिखाई गई हैं कि नार फारसी एक हार रतब, अब ये सफरा की वजह से हार, और जो दम है वो हार्ट एंड मॉइस्ट भी होता है, जो ब्लड है वो हार्ट एंड मॉइस्ट भी होता है। तो ये रतब वाली कैफियत दम से आई और हार की कैफियत किससे आई, ये आपको सफरा से भी और दम से भी, क्योंकि आपका हार भी, दम भी, जो खून भी है, हार्ट एंड मॉइस्ट, तो हार्ट एंड मॉइस्ट यही दो लफ्ज़ लिखा गया है, लेकिन इस हार में और मज़ीद इजाफा हो जाता है जब आपको सफरा की आमेजिश हो जाती है, जिसमें जिल्द पर जलन, खारिश, सुर्खी, पानी रिसना और बाद में गाढ़ापन होता है। यह ज़्यादातर सफरा और दम के फसाद की वजह से होता है। जदीद इन्फ्लेमेटरी एक एक्जिमा क्या है, हाइपर सेंसिटिव डिसऑर्डर, जो जिल्द की हसासियत गैर ज़रूरी तौर पर बढ़ जाती है, जो कि आपने पढ़ा IgE, गैर तबी तौर से बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है और ज्यों ही इजाफा होगा इल्तिहाब होगा। और बैरियर डिसफंक्शन आपने बताया कि जिल्द का जो है तहफ़्फ़ुज़ी निज़ाम ज्यों ही जो है ब्रीच होगा। और इम्यून ओवर एक्टिवेशन, ये जो है ओवर एक्टिवेशन के, इम्यून सिस्टम के ओवर एक्टिवेशन से माहियत आपने देखा। उसी तरह दाउद सदफ में क्या है, एक मुज़मिन गैर मुतअद्दी जिल्दी बीमारी है, यानी ये इन्फेक्शियस नहीं है, एक से दूसरे को नहीं, छुआछूत की बीमारी नहीं है, गैर मुतअद्दी, और जिसमें जिल्द पर सफ़ेद चमकीली छिलकों के साथ, यह ख़ास लफ्ज़ है जो सदफ और सदफ के साथ ही आपको देखने को मिलेगा और लिखना ज़रूरी है। सफ़ेद चमकीली छिलके, जो उभार होता है, सफ़ेदी होती है, चमकता हुआ होता है,
और छिलका जो है स्केलिंग होती है के साथ सख्त सुर्खी मायल धब्बे होते हैं। स्केल हमेशा क्या होता है, ये सख्ती होती है और सुर्खी मायल धब्बे होते हैं। और ये जो है सौदा के गलबा, दम की कसाफत, ये पहले ही आप दो चीज़ें पढ़ चुके हैं कि दाऊद सदफ में सौदा और गलबे दम, और इसमें आपने पढ़ा था सफरा और जो है दम। तो ये सारी चीज़ें, जिल्द की क़ुव्वत, हाजमा की ख़राबी, तो ये सारी वही चीज़ें हैं जो आपको हमने बताया। असबाब भी जो आपको शुरू में बता दिया वही असबाब है। अब आइए थोड़ा सा हम इसको देखते हैं कि क्या कहते हैं। ये हैजान खून क्या होता है, खून का जोश में आ जाना, खून की गर्दिश में गैर मामूली तेज़ी और इस्तराब। हैजान खून क्या है, खून का जोश में आ जाना, हरारत गरेजिया का बढ़ जाना, रगों में खून का तेज़ दौड़ना। जैसे हमने कहा कि आप इंसान 12 आपने मुशाहिदा किया होगा कि तेज़ चलें, दौड़ के चलें तो आपको क्या हो जाएगा, आप जोश से भर जाएंगे और टेम्परेचर में इजाफा होगा, गर्मी में बढ़ जाएगी, और नतीजा है कि सुर्खी, गर्मी, एहसास, जो वही सारी चीज़ें जो हम डील कर चुके, ये यहाँ पर इस तरीके से लिखा गया। और जिल्द में एहतकान, एकुमुलेशन ऑफ मार्बिड ह्यूमर्स। जो अब ये देखिए, ख़ास तौर से आप जो है वसूल इलाज और इलाज पर अपना तवज्जो एक बार फिर से थोड़ी देर के लिए आपसे गुजारिश है कि काइंड पे अटेंशन टू दिस पर्टिकुलर स्लाइड्स। अब इसमें कहा गया कि दाऊद सदफ में गलबे सौदा, खून की कसाफत प्लस जिल्द की खुश्की, ये पहले ही आप पढ़ चुके हैं, और फिशर, तसक्कुक, मोटाई, ये पहले पढ़ चुके हैं। अब वसूल इलाज, ये इतना जो है तारीफ जो थी उसको हमने शामिल कर दिया, ताकि अगर इस स्लाइड को सारी चीज़ें भूल जाएं, इस स्लाइड्स को भी जहन में रख लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इतना को ही समझने की कोशिश करें, रटने की नहीं, समझने की कोशिश करेंगे तो ये दोनों मर्ज इंशाल्लाह आपके जहन में बैठ जाएगा और ऐसा बैठेगा कि कभी नहीं भूलेगा। तो गलबे सौदा, खून की कसाफत और जिल्द की खुश्की, फिशर और तसक्कुक, फिशर भी बताया, शक्ल कमर भी हमने बताया, और जिल्द मोटी हो जाती है। अब वसूल इलाज में क्या है भैया, जो है जो आपका अदम तवाज़ुन हुआ है उसको तवाज़ुन में ला दीजिए, यानी आपको तनक़िया सौदा करना पड़ेगा और इस्लाह खून पढ़ना पड़ेगा। दो ही तो चीज़ें थी, आपका सौदा था और गलीज़ खून था, दम था, तो इन दोनों का तनक़िया कीजिए, सौदा का तनक़िया कीजिए और इस्लाह खून की इस्लाह कीजिए जाए। अब तदाबीर में क्या है, मुसहलात सौदा, जो मुसहल परजेटिव है, अफ्तमून और हलैला, एक दिन हमने आपको ख़ास तौर से बताया था, बड़े ही तवज्जो के साथ बताया था, अगर नहीं सुना है, आप उस लेक्चर में नहीं थे, ये हलैला स्याह है। हमने कहा कि कुदरत में ऐसी चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाई है कि वो मर्ज़ के लिए शिफा का काम करती हैं अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह का अगर हुक्म नहीं है तो कोई चीज़ वही है, उसमें कोई कैफियत नहीं होगी जब तक उसको वो हुक्म के ताबे है, हुक्म मिलेगा तब उसके बाद वो अपने दिखाएगी। तो इसमें ख़ास तौर से स्याह हलैला का मैंने जिक्र किया था, चूँकि ये स्याही है, और सौदा को भी हम क्या कहते हैं, ब्लैक। तो उस ब्लैक की कसाफत को ख़त्म करने के लिए, जिस्म से अखराज के लिए स्याह हलैला बहुत ही माकूल अदविया है। फिर उसके बाद इस्लाह कबिद और तहाल, आप जो है कबिद का भी, लीवर का भी करेंगे, स्प्लिन का भी करेंगे, तरतीब बदन करेंगे, मौज़ई इलाज में जो है मुरतबात और मुलय्यनात लगाएंगे, बतदरीज बेहतर करेंगे, जिन नरम हो जाएगी, मोटाई भी कम होगी, फिशर भी कम होगा। तो अब इसमें जो है एक ख़ास नुक्ता यह है कि दाऊद सदफ में जड़ पर काम किया जाता है, फौरी फ़ायदा मकसद नहीं होता, यानी इस बीमारी को जड़ से ख़त्म करना है। और जो इसके बरक्स आप एक्जिमा देख रहे हैं, चूँकि इसमें आग जैसी सोजिश होती है, बहुत बेचैन और इस्तराब का आलम होता है, तो इसमें तबीब का प्राइमरी नुक्ते नज़र नार फारसी के केस में क्या होना चाहिए, उसको थोड़ा तस्कीन पहुंचाना।
तो इसीलिए देखिए लिखा गया है नार फारसी में अलामत काफूरी का फौरी काबू असल हदफ है। जो मेजर इंटेंशन होना चाहिए कि इसमें जो अलामात है उसको ख़त्म करें, यानी सोजिश जो जलन हो रही है, जो शदीद खुजली हो रही है, उस पर जो है ज़्यादा ज़हन मरकूज़ करने की जो है ज़रूरत है। अब असूल इलाज में देखिए कि क्या है, हल्वे सफ़रा और दम पहले ही बता दिया गया। सफ़रा और दम, यहाँ सौदा और दम था, यहाँ सफ़रा और दम है। जिल्द में हिद्दत और रतूबत भी होगी, खून जोश में आता है गर्दिश की वजह से, और रतूबत भी होती है। तो सोजिश, खारिश और जो है पानी रिसना, पंछा बहता रहता है। बहुत ही अनप्लीजिंग सिचुएशंस जो है देखने को मिलती है। तो इसको कैसे कैसे आप जो है दूर करेंगे, इसको ये ख़ास जो आप देख रहे हैं वसूल इलाज में क्या हमने कहा, तस्कीन हिद्दत, जो खून में गर्मी आ गई है, जोश मार रहा है, सर्कुलेशन बढ़ गया है, गर्मी बढ़ गई है, हरारत गुरज़ी में इजाफा हो गया है, तो उसको सुकून थोड़ा सा जो है, तस्कीन हिद्दत। और फिर उसके बाद तजफीफ, रतूबत, जो रतूबत है उसको सुखाएंगे। पंछा जो पानी हल्का हल्का रिस रहा है उसको सुखाने की, जो तजफीफ करने की अद्वियात इस्तेमाल की जाएगी। अब उसके बाद तदाबीर में क्या है, तबरीद, थोड़ा जलन को कम करने के लिए, अरकासनी, अर्कमकूर, तजफीफ, उसको सुखाने के लिए, मोतदिल मुजफ़्फ़ात, तस्कीन खारिश के लिए, रोगन कद्दू, रोगन गुलाब, मौज़ई इलाज के लिए, मुबर्रिद व मुल्तिफ़ जमादात। और अलामात में कमी, सुर्खी में भी कमी आएगी, रतूबत में भी कमी आएगी, और इंशाअल्लाह खारिश में भी कमी आएगी। तो ख़ास तौर से आपको हमने जो चंद 7 या 8 लफ्ज़ बताए, एक बार फिर आप देख लीजिए। पहला सदफ, मोती के मानिंद सफ़ेद मोटी चमड़ी का हो जाना। अब इसमें जो है क्या चीज़ का है, इसमें जो है आपको सौदा और दम का अदम तवाज़ुन है, इसलिए सफ़रा का इखराज और दम की जो है तनक़िया आप वसूल करेंगे। उसी तरीके से यहाँ दम है तो दम को इसलाह, तो कॉमन पॉइंट है, चूँकि दम इधर भी है, दम इधर है, ये कॉमन पॉइंट है। लेकिन अब यहाँ पर सौदा की जगह सफ़रा आ गया, तो सफ़रा में अरकासनी और मकूर को ख़ास महारत हासिल है, आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए। और इसमें प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि इसमें तस्कीन की कोशिश की जानी चाहिए, इसको जड़ से ख़त्म करने की कोशिश होना चाहिए। और जदीद में हमने कहा कि इधर हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ स्किन ड्यू टू फॉरेन एलर्जेंट, और यहाँ पर जो है आपको इम्यूनिटी डिसऑर्डर है जिसमें TNF फैक्टर का अखराज होता है, जो दुधारी तलवार की तरह काम करता है। ये ट्यूमर्स को गला भी सकता है, खलियात को डेड करता है, फ़ायदा होता है, लेकिन वहीं ये जो स्केलिंग को बढ़ाता है, इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है, और मुज़मिन कैफियत में पहुंच जाता है, जैसे सर्रोसिस फीवर।